Welcome to the webinar on the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 and the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020. This presentation is brought to you by Regional Office Kolkata, Sub Office Ranchi, Patna and Bhubaneswar. I would like to start this presentation by saying there are decades where nothing happened and there are weeks where decade happened. The above quote you are looking is a rage these days as the COVID-19 pandemic has been turned into an opportunity by the government for the farmers of the country. Larger the calamity, grander the opportunity to reap benefits. By making historic reforms in Indian agriculture, these reforms has set a barrier-free trade and efficiency supply chain that is making India into one market, one nation, one market. Speaking purely on the basis of potential and hope, I would like dare say that the regulatory reforms needed for the Indian agriculture moved in last few weeks than it did during the last 7 decades. Now we can easily see or say that these are the weeks where decade happened in Indian agriculture. It started with Honorable Union Ministers Nirmala Sitharaman announcing three radical reforms: Contract Farming Amendment, Essential Commodity Acts, and a central law facilitating farmers to sell their produce anywhere in the country, rather than to license buyer or designated mandis. All three of these reforms are critical. If the government had left any even one of them from its package, the impact would have been much less as the potential to transform Indian agriculture in ways that are currently not fathomable. The first and the biggest problem with the Indian agriculture was the scale or lack thereof. Small and marginal holdings in India constitute about 86.21% of the total land holdings in the country. This is not only allow farmers to have sufficient or sustainable income but is also very damaging to overall productivity because smaller the farmer, lesser the capital. The will to experiment with crops, seed, water use, fertilizers, etc. And thus outdated policies continue. Expert after experts have been pointing out the need for consolidation of the farms if Indian agriculture has to have a shot of achieving decent levels of growth, but no policy of the government has helped. Here now these bills can prove to be a boom. As you all are aware, both the House of Parliament had passed the bills to bring transformative changes in the lives of Indian farmers. बृहस्पतिवार दिनांक 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने दोनों अध्यादेश को पारित कर दिया। अब हम एक एक करके दोनों अध्यादेश को डिटेल में देखेंगे। The first one is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020। इस अध्यादेश में क्या है और इस बिल क्या कहता है एक्चुअली, ये अब हम देखने जाएंगे। सबसे पहले ये बिल है कि ये दिस विल अलाउ लिबरल ट्रेड, उदार व्यापार की अनुमति देता है। किसान को कृषि उपज की बिक्री के लिए अधिक विकल्प प्रदान करता है। इंक्रीज कंपटीशन अमंग बायर्स, प्रमोट बैरियर फ्री इंटर-स्टेट एंड इंट्रा-स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस। Thus, this bill facilitates more buyer for farmers to sell their farming produce at the doorstep with remunerative prices। तो ये बिल बेसिकली क्या करता है, इसका एम क्या है कि व्यापार की उदार नीति तैयार करना, उसके बाद किसान को अपनी कृषि उपज की बिक्री के लिए बहुत अधिक विकल्प प्रदान करना, खरीदारों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना एवं अंतर राज्य व राज्य व्यापार मुक्त कृषि बाजारों का निर्माण करना। इसी प्रकार किसानों को अपनी खेती और उपज बेचने के लिए अधिक से अधिक खरीदारों की सुविधा प्रदान करता है।
जिससे किसानों को पारिश्रमिक तीनों की प्राप्ति होगी। The first objective of the bill, that is the Farmers Producer Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill, is to create an ecosystem. This ecosystem will help the farmers to freedom of their choice of sale and purchase of farmers' produce, and traders will also enjoy the freedom to choose the produce at remunerated prices. It will promote efficient transportation, competitive barrier-free interstate and intrastate trade, and commerce of farmers' produce outside the physical premises of APMC or deemed market notified under the various state agriculture produce market legislation. It will also provide a facilitative framework for electronic trading. Now, the question arises, is there any legal competence to the bill passed by the government of India? There is very doubt between the party of many people that whether this bill will suit to the legal competence of the government. It is very clear that interstate trade falls within entry 42 of the list of Union list. So here it will not have any legal hurdles. Secondary intra-state trade falls in entry 26 of list 2, but the same is subject to the entry of list 33 of concurrent list of the constitution. So central government is fully competent and empowered to legislate the interstate and intrastate trade of the farmers' produce. So legally also this bill will not have any problem or challenges faced, and it will be easily accepted in the legal fraternity also. Now the basic what has been defined is farmers produce as the food step. That is, it will include grain, pulses, oilseed, vegetables, fruit, etc., which is produced in its natural form or processed produce of agriculture or horticulture intended to human consumption. Second, it will also use cattle fodder including oil cakes and other concentrate, and raw cotton, whether ginned or unginned cotton seeds, and raw jute is also included. The next thing which has been included in the bill, which is very important, and how this bill defines this area will be very important in serving the thing in the coming few years. That is the trade area. Trade area, now it has been defined that it is the location including place of production, collection, aggregation, factory premises, warehouses, silos, cold storage, or any other structure from where trade of agricultural produce may be undertaken in the territory of India. But what this trade area will exclude is basically any structure which has been created and formed under state APMC Act and the premises of the where this APMC Act has been notified by the state government. Trade in the trade area. So what trade you can do in the trade area is trader may engage in trade of agricultural produce including the scheduled agricultural produce specified in the state market laws for concerned state with a farmer or another trader in the trade area. Who can trade? Trade trader having PAN qualifies for the trade. Central government afterwards may also notify alternate document for qualifying the trade. Farmer produce organization or any agriculture cooperative can also take part in the trade. So there is no restriction to anybody to trade of the agriculture produce anywhere in India now. Now we are going to see other provisions of the bill which are very important or which will benefit the farmers. The first and the foremost is the farmer or the trader don't have to pay any market fee or cess or levy under the state acts if they are trading outside the APMC mandi or on electronic trading platform. The bill provides transaction through
competitive digital training. The payment has to be made by the farmers on the same day or within the 3 working days where procedure for the required. Central government may direct a central government organization to develop a price information and market intelligence system. Central government is free to make rules, and this act will have riding effect on any state UPMC act or any other law in the trade area. So if any APMC law is there in the trade area, this rule will prevail rather than the rule of state government or APMC act. This act also comes with the dispute resolution mechanism for farmers. There will be set up a board of conciliation which will be constituted by sub-divisional magistrate. All the dispute will be settled by this board. If any dispute arises which will not be able to settle by this board, then sub-divisional magistrate can hear the dispute of the farmers or any contravention of the trade in the trade area. Sub-divisional authority can order for a recovery of amount involved in the dispute or contravention, impose penalty and restrain the trader for trade of scheduled agricultural produce for a duration. Penalties. There are hefty penalties which have been given on the traders if he violates any act or any rule of this act, and it is punishable by not less than 25,000 and may extend up to 5 lakhs, and penalty up to 5,000 per day for continued contravention. And if this trade has been done on the electronic trading platform, done on any digital platform, then this act gives a penalty of rupees 50,000 which extends up to 10,000, and penalty of 10,000 per day if continued contravention is there by any party. इफेक्ट ऑन एपीएमसी एंड एमएसपी. सो क्या हो रहा है कि लोगों को सबको ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा बिल इफेक्ट करेगा किसानों को, कि उनको एमएसपी नहीं मिलेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एपीएमसी बंद हो जाएगी और उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फार्मर्स फिर ट्रेडर्स के भरोसे रह जाएंगे या बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी. तो इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने क्लियर कट कहा है दैट दिस बिल इज नॉट इंटेंडेड टू रिप्लेस द स्टेट एपीएमसी. तो ये बिल एपीएमसी एक्ट को रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो एक और चैनल बना रहा है एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए कि वो अपना खुद का माल खुद बना के किसी को भी बेच सके और ज्यादा प्राइस ले सके. उससे क्या होगा कि एपीएमसी का लॉ भी एग्जिस्ट करेगा और ये लॉ भी एग्जिस्ट करेगा कॉमन इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स में, जिसमें फार्मर्स का इंटरेस्ट है अगर वो मंडी में जाके बेचना चाहता है तो मंडी में जाके बेच सकता है, अगर वो किसी और दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा बेचना चाहता है तो बेच सकता है, या बिना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के या ऐसे ही अपना माल किसी को भी देना चाहता है तो दे सकेगा, उसको उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा. सो ये बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि एपीएमसी मंडीज का और उसके लॉ का उसके प्रीमाइसेस को छोड़ के बाकी बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना उसके कारण एपीएमसी मंडीज बंद रहेगी, क्योंकि किसान एपीएमसी मंडीज में जाने के लिए भी कोई वो उसको रोक नहीं सकता है. दूसरा, जो कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी या एमएसपी पे बियरिंग नहीं होगा, तो बिल में वेरी क्लियर है कि उसमें कोई भी ऐसी कोई पॉलिसी जो एमएसपी को लेके है वो टोटली अलग है और उसका बिल से कोई लेना देना नहीं है. The aforesaid bill has no bearing on the policy and process of the procurement on MSP. जो भी MSP के अंडर में प्रोक्योरमेंट होता है गवर्नमेंट का वो वैसे ही चलता रहेगा, वो स्टेट एजेंसी का वैसे ही चलता रहेगा. उनके जो एमएसपी सेंटर्स है, सब सेंटर्स है, एपीएमसी जो उन्होंने डिक्लेयर किया प्रोक्योरमेंट सेंटर, वहां पे भी जो भी प्रोक्योरमेंट वो होगा वो एमएसपी के हिसाब से ही होगा और कोई दूसरा प्रोक्योरमेंट उसमें नहीं होगा. प्रोटेक्शन टू फार्मर्स. बेसिकली ये बिल क्या कर रहा है कि इसमें इन्होंने हर तरह से फार्मर्स को किस तरह से नुकसान नहीं हो, उसको किस तरह से फायदा हो, इसी का ध्यान रखा गया है और एडिक्वेट प्रोटेक्शन फार्मर्स के लिए
इस ऑर्डिनेंस बिल में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन फार्मर्स को मिला है वो रिसिप्ट ऑफ द फार्मर्स इन केस डिफर्ड पेमेंट मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज डिटरिंग पीनल प्रोविजन। अगर 3 दिन के अंदर में पैसा नहीं मिलता है फार्मर्स को तो वो पीनल प्रोविजन के अंडर में आएगा और उसको उसका पेनल्टी लगेगी और उसको पेमेंट करना पड़ेगा। In order to empower farmers with information to negotiate with traders for price, there is a provision that central government will, through any central government organization, develop a price information and market intelligence system. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करने जा रही है इसके लिए कि एक प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करने जा रही है, जिसके कारण क्या होगा कि किसानों को रोज का प्राइस उनके फोन पे या गूगल नेट पे या किसी पे भी डिजिटल मार्केट में जाके वो अपनी प्राइस इंफॉर्मेशन और आगे अपने को अगर पिछले अगले 3 महीने के लिए क्या उगाना है क्या नहीं उगाना है ये सब चीज इस मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम में दिखाई पड़ेगी। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप करने जा रही है। दूसरा जो है वो क्लियर कट बहुत ही सिंपल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, जिसमें तहसील और सब डिवीजन लेवल पे भी सब फार्मर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसका कॉस्ट का डिस्प्यूट सेटलमेंट वहां के वहां हो जाएगा और हर चीज के लिए कॉन्सोलेशन बोर्ड बनाया जाएगा। उस कॉन्सोलेशन बोर्ड से ही, कॉन्सोलेशन बोर्ड का मतलब ये है कि एक दोनों के एग्रीमेंट से ही अगर वो डिस्प्यूट खत्म हो जाता है, किसान और ट्रेडर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एक दूसरे के एग्रीमेंट से ही या एक दूसरे से बातचीत करके अगर उसका हल निकल जाता है तो वो कॉन्सोलेशन बोर्ड में जाके उस हल को निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर ये नहीं होता है तो जैसे अपन ने प्रीवियसली दिखाया कि फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट उस चीज को कर सकता है। Bill also provides for its necessary and expedition a system of electronic registration for trader। तो हर ट्रेडर को इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करना है जो इस बिल में प्रोवाइड किया गया है। मॉडलिटीज ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ शेड्यूल फॉर्मेट इन द ट्रेड एरिया, जो कि बताएगा कि ट्रेड ट्रांजैक्शन किस तरह से होगा, मोड ऑफ पेमेंट कैसे होगा और इस चीज को फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एरिया में कैसे किया जा सकता है। Now we are going to see the next bill, that is the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण करार बिल 2020। इस बिल में क्या है, इस बिल से किसान को क्या फायदा होने वाला है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली व्हाट इट डज इज टू इट प्रोवाइड्स फॉर ए नेशनल फ्रेमवर्क ऑन फार्मर एग्रीमेंट। एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आपको एक फार्मर एग्रीमेंट मिलेगा जिस हिसाब से आप किससे कैसा एग्रीमेंट कर सकते हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, एम्पावर करेगा फार्मर्स को टू एंगेज विद एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर, होलसेलर, एक्सपोर्टर और लार्ज रिटेलर फॉर फार्म सर्विस एंड आगे फ्यूचर में भी सेल करने के लिए फार्मिंग प्रोड्यूस जो है म्यूचुअली एग्रीड रेम्युनरेशन प्राइस के ऊपर फ्रेमवर्क में किसान अपने जो भी माल है उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में और मैटर कनेक्टेड देयर आफ्टर इन द इंसिडेंट देयर टू में आराम से उसके साथ करार करके अपना माल कोई भी प्रायोजित प्रोसेसर होलसेलर को बेच पाएंगे। फार्मिंग एग्रीमेंट्स ऑर्डिनेंस। तो दूसरा जो ऑर्डिनेंस या जो दूसरा बिल पास हुआ है फार्मर एग्रीमेंट्स ऑर्डिनेंस, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है और क्या नहीं है वो अब हम देखेंगे अभी। तो लीगल फ्रेमवर्क फॉर एग्रीमेंट्स बिटवीन फार्मर्स एंड स्पॉन्सर्स फॉर परचेस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस एंड प्रोविजन ऑफ द फार्म सर्विस एंटर इनटू बिफोर द हार्वेस्ट। तो ये क्या कर रहा है, ये एग्रीमेंट कर रहा है फार्मर्स और ट्रेडर्स के बीच में या एनी अदर एंटिटी के बीच में बिफोर दे एंटर्ड इनटू हार्वेस्ट। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स, कौन कौन से टाइप ऑफ एग्रीमेंट इसके अंदर अपन कर सकते हैं। ओनरशिप ऑफ कमोडिटी रिमेन्स विद द फार्मर्स एंड he gets paid on delivery of the produce। तो एक डाउट ये भी लोगों के मन में आ रहा है या लोगों को कहा जा रहा है या फार्मर्स को बताया जा रहा है कि
आपका लैंड चला जाएगा, आपका लैंड जिसने लीज पे लिया है वो ले लेगा, या आपका बड़ा बड़ा ट्रेडर आपका लैंड ले लेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर कट इसमें मेंशन है कि फार्मर्स की जो ओनरशिप है वो फार्मर्स के पास रहेगी, उसकी जो कमोडिटी है वो भी फार्मर्स के पास रहेगी, और जब वो उसका डिलीवरी करेगा ट्रेडर्स को, उसका डिलीवरी करने के बाद ही विल गेट द पेमेंट फ्रॉम द ट्रेडर। स्पॉन्सर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्पॉन्सर्स प्रोवाइड करेगा इनपुट्स, वो बियर करेगा जितनी भी रिस्क है। फार्मर्स गेट पेड फॉर द सर्विसेज, और फार्मर्स को जो भी सर्विसेज वो देगा उसको पेमेंट करेगा। सच अदर एग्रीमेंट्स और कॉम्बिनेशन दे रहा, इसको छोड़ के भी और भी कुछ एग्रीमेंट अगर फार्मर्स और ट्रेडर अपने बीच में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और उसको करने की कोशिश की जाएगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अभी गाइडलाइंस भी बनाने जा रहा है कि मॉडल फार्मर एग्रीमेंट क्या हो, और उस तरह से गाइडलाइंस बनाई जाएगी कि जिससे एक परफेक्ट मॉडल फार्मिंग एग्रीमेंट बन जाए। नेक्स्ट, फार्मिंग एग्रीमेंट ऑर्डिनेंस में और क्या क्या चीजें? प्राइस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस में बी फिक्स्ड इन एडवांस एज पर द फार्मिंग एग्रीमेंट। तो जो भी फार्मिंग प्रोड्यूस है वो अपन एडवांस में ही फिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद अपन फार्मिंग एग्रीमेंट बना के उस प्रोड्यूस को उस हिसाब से अपन जो फार्मर से उसको बेच पाएंगे। वेयर सच प्राइस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन देन ए मिनिमम गारंटेड प्राइस हैज टू बी फिक्स्ड। कभी कभी क्या हो जाएगा कि जैसे लोगों में ये धारणा बन गई है कि हमें जो क्वालिटी अगर खराब हो गई, बारिश आ गई, कुछ हो गई, तो उसके कारण वेरिएशन हो गया क्वालिटी में, तो हमें वो प्राइस मिलेगा नहीं। तो इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस तैयार होगा उसका कुछ ना कुछ एक मिनिमम गारंटीड प्राइस फिक्स रहेगा, और उसके ऊपर जो भी क्वालिटी है और उसके ऊपर से जो एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से ही उसका पेमेंट होगा। पर अगर कुछ कभी कुछ खराब हो जाता है या सब्जेक्ट टू क्वालिटी वेरिएशन हो जाता है, तो देन मिनिमम जो गारंटेड प्राइस एग्री किया है उसको वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। Any additional amount including bonus over and above the guaranteed price will be as per the clear price reference. Price reference linked to suitable benchmark prices. Method of determining advance or guaranteed price shall form the part of the agreement. तो ये सब चीजें जब एग्रीमेंट बनेगा किसान के साथ तो ये पूरी तरह से क्लियर रहेगी, और जिसके लिए हम मॉडर्न एग्रीमेंट बनाने की भी कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रही है। तो जो सबके डिस्ट्रीब्यूट होके जो सबके लिए एक तरह से मॉडल होगा कि उस हिसाब से आप एग्रीमेंट कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना है? कंप्लायंस करना है म्यूचुअली एग्रीड क्वालिटी ग्रेड और स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस के ऊपर। इसमें क्या लाभ होगा कि फार्मर्स जो अभी तक ये कुछ ही चीजें ये करता था, ग्रो करता था, और उसके कारण उसको क्या होता था कि वो कोई भी नई चीज ग्रो करने के लिए आगे नहीं आता था। तो अभी ऐसा होगा कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है आपका प्रोड्यूस, तो फार्मर्स आपका क्वालिटी ग्रेड के साथ आपके क्रॉप के साथ एग्री करके वो प्रोड्यूस करके उसको वो बेच सकेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा कि अपना प्रोड्यूस वो एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। अभी तक क्या होता था कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था, या उसको मंडी में ही जाके बेचना पड़ता था, या किसी के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था, या एमएसपी के जो डिक्लेयर्ड एमएसपी के जो क्रॉप्स है उसी को वो लेता था कि भाई मुझे मिनिमम इतनी प्राइस मिल जाएगी। पर इस एग्रीमेंट में उसको मिनिमम एग्रीड प्राइस मिलेगी। कोई भी प्रोड्यूस करने के बाद अगर ये उसकी क्वालिटी अगर खराब भी हो जाती है तो उसको उस तरह से नुकसान नहीं होगा। तो ये फार्मर्स को बहुत ही फायदेमंद एक तरह से साबित होगा ये ऑर्डिनेंस। दूसरा क्या होगा कि कंपैटिबिलिटी विद एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस एंड एग्रो क्लाइमेट। जब नए इसमें लोग उतरेंगे और इसमें काम करेंगे, जब नए ट्रेडर्स आएंगे, नई कंपनियां आएंगी, वो अपने साथ नई नई प्रैक्टिसेस लाएंगी, नई नई चीजें लाएंगी, स्टैंडर्ड्स लाएंगे, ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स लाएंगे। स्टैंडर्ड्स फॉर पेस्टिसाइड रेसिपी हो गया, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो गया, लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया। इस तरह से वो बहुत सी चीजें जो फार्मर्स के फायदेमंद होगी वो अपने साथ लाएंगे, जिसके साथ फार्मर्स का प्रोड्यूस भी बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, और उसके कारण उसको बहुत अच्छा प्राइस मिल सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी सोच रही है कि थर्ड पार्टी असेसिंग एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग विल बी डेवलप इन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। इसके भी एग्रीड टर्म्स बनाए जाएंगे, और इस हिसाब से फिर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी
किसान अच्छी तरह से कर सकता है और उसको उसका वाजिब दाम मिलेगा। अगला जो प्रोविजंस है वो है मॉडल एग्रीमेंट फॉर गाइडेंस ऑफ फार्मर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्राइस रेफरेंसिंग, किस क्वालिटी का क्या प्राइस होगा, गारंटेड प्राइस किस तरह से एक्सप्लिसिटली मेंशन होगा एग्रीमेंट में, ये सब चीजें उस ऑर्डिनेंस में और उस एग्रीमेंट में मेंशन की हुई है या क्लैरिफिकेशन है। स्पॉन्सर्स क्या है, वो इंश्योर करेगा कि टाइमली एक्सपेक्टेंस ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ प्रोड्यूस। तो स्पॉन्सर जो है, जो ट्रेडर है या जो किसान से माल खरीदना चाहता है या जो एग्रीमेंट करेगा किसान से, उसका क्या कर्तव्य है, तो उसको सबसे पहले है कि उसका टाइमली एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, जो भी उसने डिलीवरी का टाइम डिसाइड किया हुआ है उनके साथ वो डिलीवरी करेगा। और जो पेमेंट का टाइम है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि पेमेंट का टाइम 3 दिन के अंदर है, उस 3 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना है। उसके बाद एग्रीमेंट कैन नॉट बी डी रेगुलेशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स, कोई भी एग्रीमेंट शेयर क्रॉपर्स के राइट्स के ऊपर ये नहीं कर सकता। सेल, लीज और मॉर्टेज ऑफ फार्मर्स लैंड इज प्रोहिबिटेड। तो कोई भी ट्रेडर या कोई भी स्पॉन्सर्स जो फार्मर का लैंड है उसको सेल नहीं कर सकता, लीज नहीं कर सकता, मॉर्टेज नहीं कर सकता, ये सब चीजें इसमें प्रोवाइड की गई है। स्पॉन्सर्स नॉट अलाउड टू बिल्ड एनी परमानेंट स्ट्रक्चर, इफ बिल्ट एंड नॉट रिमूव देन ओनरशिप विल वेस्ट विद द फार्मर्स। कोई भी उसमें परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाता है उसको निकालता नहीं है तो वो स्ट्रक्चर फार्मर का हो जाएगा। फार्मर्स लायबिलिटी जो लिमिट की गई है वो सिर्फ एडवांस रिसिप्ट और कॉस्ट ऑफ इनपुट में है, जो अगर स्पॉन्सर किसी ने उसको प्रोवाइड किया है। तो अगर वो कोई भी उसको प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। और फार्मर्स का लैंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी रिकवरी, अगर फार्मर्स की कोई रिकवरी निकलती भी है तो उसको उसका लैंड प्रोटेक्टेड रहेगा, उसके लैंड को बेच के या उसको आप उसका लैंड नहीं ले सकेंगे और रिकवरी उसकी करनी पड़ेगी। एग्रीगेटर एंड फार्म सर्विस प्रोवाइडेड में ज्वाइन एज थर्ड पार्टी। एग्रीगेटर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फार्म सर्विस प्रोवाइडेड है जो इनपुट प्रोवाइड करना चाहता है वो भी थर्ड पार्टी करके ज्वाइन कर सकता है। मल्टीपल एग्रीमेंट हो सकते हैं। प्रोविजंस फॉर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट है इसमें, तो आराम से इंश्योरेंस भी कंपनी कर सकती है, क्रेडिट भी ले सकती है उसके बेसिस पे। तो किसानों के ऊपर ये जो बाहर अभी तक इंश्योरेंस का आ रहा था या क्रेडिट लेने का आ रहा था वो नहीं आएगा। और जो स्पॉन्सर है अगर वही ये सब चीजों में देखता है और इस तरह से एग्रीमेंट करता है तो किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद हो जाएगा। एग्रीगेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय थर्ड पार्टी एंड फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट नॉट रिक्वायर्ड। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, बट ई रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज भी सेटअप किया जाएगा स्टेट्स में। मैंडेटरी कंसल्टेशन अमंग्स पार्टीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट फंक्शनरी। सो अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो मैंडेटरी कंसल्टेशन पार्टीज के बीच में हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट का फंक्शनरी इन्वॉल्व नहीं होगा। बट अगर कुछ होता है तो पार्टीज सब डिविजनल अथॉरिटी के पास जा सकती है अगर उन पे कोई कंसल्टेशन या एग्रीमेंट नहीं हुआ तो। समरी प्रोसेस एंड टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर रिजोल्यूशन, ये रिजोल्यूशन कितने दिनों में खत्म होना चाहिए वो होना चाहिए, इसका भी टाइम लिमिट, समरी सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। रिकवरी ऑफ डिक्रेटल अमाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ रेवेन्यू जो भी है वो भी होगा। पेनल्टी अगेंस्ट स्पॉन्सर्स फॉर नॉन पेमेंट में बी एक्सटेंडेड टू 1.5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट। तो अगर स्पॉन्सर पेमेंट नहीं करता है या नॉन पेमेंट करता है या टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो वो उसकी पेनल्टी हो जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ द अमाउंट जो उसको पेमेंट करना है। धन्यवाद। अभी मैं आपके क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हूं, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।